A very good evening, all of you. Today we will discuss about Marxism in our class. So, when we talk about Marxism, then Marxism derives its name from that of Karl Marx, a famous German economist and social philosopher of the 19th century, who is a chief exponent of this theory. It is interesting to recall that this term was unknown in Marx's own lifetime. Frederick Engels, a close friend and collaborator of Marx, once reported the following comment made by Marx himself: "All I know is that I am not Marxist." ये बात मार्क्स ने खुद कही थी कि मैं मार्क्सिस्ट नहीं हूँ। और फ्रेडरिक एंजल्स जो उसका एक फ्रेंड और कोलैबोरेटर था, उन्होंने इसको अ, बताया इस बात के बारे में कि मार्क्स ने ऐसा कुछ कहा था। मार्क्स के जो खुद की लाइफ टाइम थी, उसमें ये मार्क्सिज्म की टर्म पूरी तरह से अननोन थी। Marx probably said so as he did not claim to offer a comprehensive world view. It is also possible that he didn't advance such a claim out of modesty. However, towards the end of 19th century, प्लेखनेव रशियन मार्क्सिस्ट जिन्होंने अनाउंस किया था कि मार्क्सिज्म एक होल वर्ल्ड व्यू है। However, despite this name, Marxism should not be regarded as a system of thought exclusively belonging to Marx. Marxism तो in fact एक comprise करता है एक rich tradition of social thought, जैसे living tradition जिसमें immense possibilities होती है। Marxism in its proper sense first appeared in the middle of the 19th century, जो अभी हम पढ़ भी चुके हैं, in response to the conditions oppressive conditions created by the capitalist system. It will be recalled that liberalism arose in the 17th century as a philosophy of human freedom. But by the middle of the 19th century, it had become clear that the classical form of liberalism, with its doctrine of laissez faire and free market economy, had failed to create condition of human freedom. मार्क्सिज्म अपने प्रॉपर सेंस में सबसे पहले ये अपीयर हुआ था 19th सेंचुरी में। कैपिटलिस्ट सिस्टम जो ओप्रेस कर रहा था लोगों को, यानी कि शोषण कर रहा था। कैपिटलिस्ट सिस्टम के द्वारा जो वर्किंग क्लास है, जिसको हम लेबर क्लास बोलते हैं, उनका ऑपरेशन किया जा रहा था। 17th सेंचुरी में लिबरलिज्म अरोज हुआ था एक फिलोसॉफी के रूप में, जिसमें ह्यूमन की फ्रीडम की बात की जाती थी। बट 19th सेंचुरी के मिडल में ये क्लियर हो गया कि जो क्लासिकल फॉर्म है लिबरलिज्म की, जिस अपने जो उसका एक डॉक्ट्राइन था लेसिस फेयर और फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो जो ये सिस्टम था ये फेल हो गया था ह्यूमन फ्रीडम की कंडीशंस को क्रिएट करने में। लिबरलिज्म ने अचीव कर लिया था अपना goal of establishing capitalism under which a tiny class of capitalists enjoyed special power and privileges at the expense of the large majority of the working class. जो लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी थी sought by the exponent of liberalism had been achieved with tremendous economic inequalities and consequent injustice. और जो अर्ली चैंपियंस थे लिबरलिज्म के, उन्होंने उम्मीद की थी कि जो एलिमिनेशन है गवर्नमेंटल रिस्ट्रिक्शन का ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज would usher in an era of universal improvement in the material conditions of life. बट जो एक्चुअल एक्सपीरियंस था उसने शो किया कि जो अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म है ये इसने प्रोड्यूस किया है सोशली डिसएस्ट्रुअस कॉन्सिक्वेंसेस। ये थोड़ा पीडीएफ है तो स्क्रॉल ढंग से हो नहीं रही है। जो ट्रेमेंडस इंक्रीज था वेल्थ का, इसको कॉर्नर्ड किया गया था बाय अ स्मॉल सेक्शन विच हैपन टू ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वाइल जो लार्ज मेजोरिटी थी इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन की उसको फोर्स किया जा रहा था टू अ सब ह्यूमन लिविंग्स। सक्सेसफुल बैंकर्स और जो मार्केट स्पेकुलेटर्स थे उन्होंने इंक्रीज की अपनी वेल्थ
by leaps and bounds, while जो slum dwelling working classes थे were living under the constant threat of insecurity, malnutrition, discomfort, disease, and death. These development believed all the humanitarian hopes of universal economic progress. देखिए ये जो पूंजीवाद थे, जो पूंजीवादी जो लोग थे, सॉरी, इनमें आपको पता है कि पूंजीवादी कौन होते हैं? इन लोगों के द्वारा, यानी कि जो ये बैंकर्स थे या फिर जो मार्केट स्पेक्युलेटर्स थे, इन्होंने अपने पैसों को इस तरह बढ़ाया, अपनी वेल्थ को, अपनी प्रॉपर्टी को लीप्स एंड बाउंड्स की तरह। जहाँ पे जो दूसरी तरफ वर्किंग क्लास थी, लेबर क्लास थी, वो इनसिक्योरिटी के थ्रेट में रह रही थी कंटिन्यूअसली। उनको किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, वो डिस्कम्फर्ट फ़ील करते थे, उन्हें काफ़ी सारी डिज़ीज़ हो रही थी, डेथ हो रही थी उन लोगों की, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग या उनकी इनकम से रिलेटेड या जो भी वो काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनका उनको पे नहीं किया जा रहा था। पूरी तरह से उनको शोषित किया जा रहा था, शोषण हो रहा था पूंजीवाद के द्वारा। इन शॉर्ट में जो और इन्हीं जो जो शोषण इनका हो रहा था, इनको देखते हुए जो ये मार्क्सिज़्म था, ये उभरा ताकि ये एक कम्युनिज़्म की जो व्यवस्था है उसको एस्टेब्लिश कर सके, जहाँ पे ना कोई क्लास होगी, ना ही कोई स्टेट होगा। यानी क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की इसमें बात की जाती है। क्योंकि इसमें देखा गया कि किस तरीके से जो पूंजीवाद है वो श्रमिकों का शोषण कर रहा है और उनके जो हक है उनको भी अम, यानी उनका हक उन्हें नहीं प्रोवाइड कर रहा है और सिर्फ उनका शोषण ही किया जा रहा है। इन शॉर्ट में जो मार्क्सिज्म है उसको डिफाइन किया जाता है एज अ सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल फाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स in order to lay scientific foundations of socialism. It seeks to understand the problems of human society through historical analysis and ये ट्रीट करते हैं हिस्ट्री को एज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंटागोनिस्टिक फोर्सेस एंड क्लासेस। जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे फ्रॉम द फॉल्ट इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन विच वन क्लास कम्स टू गेन ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन। यानी इसमें जो एक क्लास है उसके द्वारा जो जब ये सोशल प्रोडक्शन हो रही थी, पूरी ओनरशिप थी उनके पास में लैंड, बिल्डिंग, माइंस, फॉरेस्ट, मशीनरी एंड कैपिटल एटसेट्रा, एंड कंपेल्स द अदर क्लास टू वर्क ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेटेड बाय इटसेल्फ। और जो दूसरी क्लास थी, जो उनके द्वारा जो भी टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड की जा रही थी, उन्हीं के द्वारा उनको काम करने पर विवश होना पड़ रहा था। काफ़ी मजबूर होकर वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहे थे क्योंकि इनके अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व ओनली बाय ओवरथ्रोइंग कैपिटलिज्म। और फिर जिस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट ये सोसाइटी में हो रहा था, इसको रिसॉल्व करने के लिए कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत महसूस हुई, प्लेसिंग ऑल मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन अंडर सोशल ओनरशिप। और इसमें ये कहा गया कि जो सोशल प्रोडक्शन के जो भी मीन्स हैं उनको सोशल ओनरशिप और कंट्रोल में लाया जाए, एनफोर्स किया जाए यूनिवर्सल लेबर एंड एंश्योर फुल डेवलपमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सब बातें इसमें की जा रही थी। और जो ओरिजिनल टेनेंट्स है मार्क्सिज्म के एज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ थॉट आर आइडेंटिफाइड एज क्लासिकल मार्क्सिज्म। इसका जो चीफ एक्सपोनेंट है वो इंक्लूड करता है अपार्ट फ्रॉम मार्क्स एंड एंजल्स themselves, लेनिन, अ रशियन रेवोल्यूशनरी एंड थिंकर, then Rosa Luxemburg, a Polish activist, and Mao Zedong, a Chinese revolutionary and thinker. The wider implications of Marxism, including humanist thought of the young Marx, are broadly identified as neo Marxism. In a nutshell, classical Marxism holds that private property divides society into dominant and dependent classes with irreconcilable class interest. ये हेल्ड करती है टुगेदर only by the ideological power of the dominant class. Human history moves towards its goal of human freedom through the revolutionary destruction of inherent contradictions in society, culminating in the emergence of a classless society.
जो नियो मार्क्सिज्म है ऑन द अदर हैंड सीक्स टू एनालाइज द सबटल एस्पेक्ट ऑफ द फिनोमिना of dominance and dependence, distortion in the contemporary civilization, and the possible ways to human emancipation. ये हमने बात करी मार्क्सिज्म के बारे में। अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में इसको और जान लेते हैं। सॉरी। संक्षेप में जो मार्क्सवाद है, उसके अंतर्गत मानव समाज की जो भी समस्याएं हैं, उनको इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया जाता है। और जो इतिहास है, उसको परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्गों के संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ये जो संघर्ष है, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसके कारण पैदा होता है, जिसमें कुछ लोग मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर अपना स्थायित्व स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं, यानी वो अपने आप को उसका ओनर मानते हैं। और जो बाकी समाज है, उसको अपनी कंडीशंस पर लेबर करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इससे हैव्स एंड हैव नॉट अस्तित्व में आ जाते हैं, जो क्रमशः प्रभुत्वशाली और जो पराधीन वर्ग है, यानी जो डोमिनेंट और जो डिपेंडेंट क्लास है, उसकी भूमिका संभाल लेते हैं। प्राचीन काल की बात करें या मध्यकाल की या आधुनिक युग की, तो ये जो क्लास है, इनको क्रम से मास्टर और स्लेव, लैंडलॉर्ड और सर्फ और कैपिटलिस्ट एंड वर्कर के रूप में देखने को मिलते हैं। इन परस्पर विरोधी वर्गों के हितों में इतना बुनियादी विरोध है कि उनमें रिकंसाइलेशन स्थापित करना संभव नहीं है। मार्क्सवाद आधुनिक युग में संपूर्ण विश्व के कामगार वर्ग को पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संगठित होने का संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा अगर इस संदेश को अगर लोग मानेंगे, तो उससे पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति करके, रेवोल्यूशन करके सोशलिज्म की स्थापना की जा सकती है और अंत में कम्युनिज्म का उदय होगा। यह एक ऐसा स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी होगी, जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, मिल बांट कर खाएंगे और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। मार्क्सवाद का जो दार्शनिक आधार है, वो मटेरियलिज्म है। इसमें जो मैटर है, उसको सृष्टि का सार तत्व माना जाता है, और जो विचार तत्व है या जो कॉन्शियसनेस है, उसको भौतिक तत्व की जो प्रतिछाया है, उसके रूप में देखा जाता है। और ये जो सिद्धांत है, ये सोशलिज्म के सहारे मानव जाति की जो मटेरियल नीड्स है, उनकी पूर्ति पर बल देता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट मार्क्सिज्म। सिंपल वर्ड्स में मार्क्सिज्म को अगर आप समझना चाहते हो, तो सिर्फ इतना समझो कि उन राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय जिन्हें 19वीं यानी 19th और 20th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंजल्स ने, वी.आई. लेनिन तथा अन्य विचारकों ने सोशलिज्म के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए प्रेजेंट किया था। तो ये है हमारा मार्क्सिज्म। अब उसके बाद थोड़ा-सा अगर नियो मार्क्सिज्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो देखिए, ये नियो मार्क्सिज्म उन सिद्धांतों का एक समुच्चय है, जिसमें जो मार्क्सिज्म है, उसकी बुनियादी मान्यताओं के आधार पर समकालीन विश्व की जो भी जटिल परिस्थितियाँ हैं, उसकी समीक्षा की जाती है। इसके अंतर्गत जो समकालीन समाज है, उसके विभिन्न स्तरों, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या फिर मनोवैज्ञानिक जो स्तर है, उस पर प्रभुत्व और पराधीनता की, यानी डोमिनेंस और डिपेंडेंस का जो गूढ़ तरीका है, उसका विश्लेषण किया जाता है और ह्यूमन की इमेंसिपेशन के जो उपाय हैं, उन पर विचार किया जाता है। नवमार्क्सवाद के जो मुख्य ये उन्नायक है, इसमें थियोडोर एडोर्नो और हर्बर्ट मार्क्यूज, लुई अल्थ्यूजर, मैक्स हर्खहाइमर और हेबरमास, एरिक फ्रॉम, जोपाल सार्त्र, इनके नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।